Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragrad. So let's start with the set number 19 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 23 short one paper, and the set says the schematic diagram below shows 12 rectangular houses in a housing complex. House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses. The houses are located in 6 column A through column F, and 2 rows, row 1 and row 2. The houses are divided into two blocks, block XX and block YY. The diagram also shows two roads, one passing in the front of the house row 2 and another between the two blocks. Some of the houses are occupied, the remaining ones are vacant and are the only ones available for the sale. The road adjacency value of a house is the number of its side adjacent to road. For example, the adjacency value of a C2, F2 and B1 are 2, 1 and 0 respectively. The neighbor count of a house is the number of the side of that house adjacent to occupied houses in the same block. For example, E1 and C1 can have maximum possible neighbor count of 3 and 2 respectively. The base price of a vacant house is rupees 10 lakh if the house does not have a parking space, and rupees 12 lakh if it does. The quoted price in lakh of a vacant house is calculated as base price plus 5 into road adjacent value plus 3 into neighbor count. The following information is known. The maximum quoted price of a house is given. The number minimum quoted price of a house YY is rupees 15 lakh, and one such house is in column E. Row 1 has two occupied houses and one in each block. Both houses in column E are vacant. Each of column D and column F has at least one occupied house. There is only one house with parking space in block YY. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी हाउसेज आर वैकेंट इन ब्लॉक एक्सेस? Which of the following houses are definitely occupied? Which of the following option best describe the number of vacant houses in row 2? What is the maximum possible quoted price in lakh for a vacant house in column E? Which house in block YY has a parking space? ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है? एक 12 घर दिए हुए हैं जिसमें कि दो ब्लॉक के अंदर उनको डिवाइड करा गया और 6 कॉलम में डिवाइड करा गया. ब्लॉक एक्स जहाँ पे 6 घर है, ब्लॉक वाई जहाँ पे 6 घर है, जिनके बीच में एक रोड जा रही है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरा सेटअप है, अपने को कोटेशन पे कुछ काम करना है. ठीक है, अब घर क्या हो सकते हैं? या तो वो वैकेंट होंगे या तो वो ऑक्यूपाइड होंगे. अगर वो वैकेंट होंगे तो उनकी कोटेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, कोटेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या हो सकता है? कोटेशन ऑफ एनी हाउस वुड बी प्राइस, क्या होगा? बेस प्राइस प्लस 5 इंटू रोड एजेंसी वैल्यू प्लस 3 इंटू नेबर काउंट. ठीक है, अब ये दो चीजें क्या है? रोड एजेंसी वैल्यू क्या है? बेसिकली C2 की अगर बात करें तो C2 के अराउंड कौन सी रोड है? एक रोड ये गई है, एक रोड ये गई है, तो C2 के लिए रोड एजेंसी वैल्यू क्या होगी? 2. एंड इसका नेबर काउंट क्या होगा? 1 2 3, पॉसिबली अगर तीनों ही ऑक्यूपाइड है तो. ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है ना. यहाँ पे क्या लिखा था? E1 एंड C1 कैन हैव मैक्सिमम पॉसिबल, इसीलिए वर्ड यूज किया हुआ है. मैक्सिमम पॉसिबल क्यों बोल रहा है? बिकॉज इसको पता है कि C2 का शायद 3 में से 2 हो, शायद 1 हो, शायद 0 हो, या शायद 3 हो. तो इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है? B2 का 3 हो सकता है, 1 2 3. C2 का कितना हो सकता है? 2. एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, तो यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल कुड बी 2. ठीक है, अब इसके अलावा अपने को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है जिसके अंदर अपने को बोला गया है द मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक एक्स एक्स इज रुपीज 24 लाख. ठीक है, ब्लॉक एक्स एक्स में जो मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस है दैट इज 24 लाख. अब वो कौन से हाउस का है नहीं पता. ऐसे ही वाई वाई का मिनिमम पॉसिबल हाउस का जो प्राइस दिया हुआ है दैट इज 15 लाख. ठीक है, अच्छा. एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम नंबर ई, और वो जो घर है वो यहीं पे होना चाहिए. ये भी कह दिया, वो E1 E2 में से कोई एक होने वाला है. ठीक है, E1 और E2 में से कोई एक होने वाला है, ये भी अपने को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया वाई वाई के में से. ठीक, अच्छा. इसके आगे लिखा हुआ है रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेज, 1 इन ईच ब्लॉक. ठीक है, रो 1 के पास 2 ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं, और यानी कि 4 वैकेंट हाउस होंगे, और वो जो दो हैं दो अलग अलग ब्लॉक में होंगे. एक ब्लॉक वाई में होगा और एक ब्लॉक एक्स में होने वाला है. यानी कि A1 B1 C1 में से कोई एक खाली है, D1 C1 सॉरी ऑक्यूपाइड है, D1 E1 F1 में से कोई एक ऑक्यूपाइड है, ये पता है. ठीक, बोथ हाउसेज इन कॉलम ई आर वैकेंट. कॉलम ई में दोनों ही हाउसेज वैकेंट हैं, ये भी वैकेंट है और ये भी वैकेंट है. ठीक, अब बाकियों का नहीं पता वो ऑक्यूपाइड है कि क्या है. ठीक है, ईच ऑफ कॉलम डी एंड कॉलम एफ हैज एटलीस्ट वन ऑक्यूपाइड. कॉलम डी और कॉलम एफ में भी कोई एक हाउस इनका ऑक्यूपाइड है. एटलीस्ट वर्ड यूज किया तो मतलब प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हो. ठीक है,
बट एक तो है ये, ठीक है। देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई वाई, एक घर है पूरे वाई वाई वाले ब्लॉक में जो कि पार्किंग स्पेस के साथ बैठा हुआ है, ठीक। अब एक पजल का स्टैंडर्ड सेट जहाँ पे पूरा देखो मतलब डिडक्टिव रीजनिंग में पूरा ये कहानी चल रही है, एक आपको वो डायग्राम दे दिया, उसी के अराउंड प्राइसिंग अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक। अब यहाँ पे कैसे करा जाए, जनरली जब भी ऐसी बात हो तो आपको क्या करते हैं, या तो मैक्सिमम प्राइस पे जाओ या मिनिमम प्राइस पे जाओ। यहाँ पे मैं मिनिमम प्राइस के साथ जाना शुरू करूंगा बिकॉज E1 E2 में से पता है, मैक्सिमम प्राइस में भी करा जा सकता है बिकॉज 6 में से कौन सा घर है नहीं पता, हालांकि वो भी अपने को मैनेज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस 15 लाख। 15 लाख क्या हो सकता था, E1 के साथ हो सकता था, ठीक, या E2 के साथ हो सकता था, ये दो पॉसिबिलिटी थी, ठीक। E1 का अगर प्राइस निकालना है तो क्या होगा, बेस प्राइस प्लस क्या होने वाला है, ये यहाँ पे क्या है, कोई रोड जा रही है नहीं, जीरो, ठीक, प्लस इसका जो इसके अगल बगल के जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकते थे, ये जो ऑक्यूपाइड वाले एक हो सकते थे या दो हो सकते थे या जीरो हो सकते थे, यानी कि ये हो सकता था 0, 3 और 6 में से कोई एक, ठीक है। एंड दी वैल्यू हैज टू बी 15 लाख। अब 15 लाख में बेस प्राइस क्या होना पड़ेगा, बेस प्राइस क्या हो सकता था, वो हो सकता था या तो 10 लाख, यहाँ पे लिखा था ना एक जगह पे अपने को शुरुआत में ही था, बेस प्राइस यहाँ पे वो 10 लाख या 12 लाख हो सकता था। तो अपने को क्या पता था, बेस प्राइस की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो 10 लाख हो सकती है या 12 लाख हो सकती है, ठीक है। अब इसको ये जो 10 लाख है ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इवन होना पड़ेगा तो कैसे बनेगा, 10 लाख प्लस 3 लाख नहीं पॉसिबल है, 10 प्लस 6 पॉसिबल नहीं है, 10 के साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है, 12 के साथ पॉसिबल है, पॉसिबल है, यानी कि 12 प्लस 3 लेना पड़ेगा, विच इज सीम्स लाइक ये पॉसिबल है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती थी, कब, जब आप 12 और 3 को ले पाओगे। इसी तरीके से आई हैव टू थिंक ऑफ E2 ऑल्सो, E2 में भी दिमाग लगाते हैं इसी तरीके से। E2 के बारे में क्या पता है, अगेन बेस प्राइस विच कैन बी ईदर 12 और 10, ठीक है, क्या होगा नहीं पता, बट यही होने वाला है, बेस प्राइस में से प्लस E2 की एक रोड चल रही है तो यानी कि 5 लाख यहाँ पे आ गया, प्लस इनके में क्या हो सकता था, अगेन इसके में भी या तो 0 घर होते, या तो 3 हो सकते थे, या तो 6 हो सकता था, मतलब 0, 1 और 2 हो सकता था, यानी कि 0, 3 और 6 में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए थी। अच्छा, बेस प्राइस को हम क्या बना सकते हैं, अगर मैं 10 लेता हूँ तो 10 और 5 15, यानी कि ये 0 लेना पड़ेगा, विच इज इन अ वे पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12 और 5 17 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि क्या लेना पड़ेगा, 10, 5 और 0। एक ये तरीका अपना बन सकता था, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि E2 वाला केस और E1 वाले केस में ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। एक बन सकता था कि E1 को 12 लाख ले ले और कोई एक घर इनको ऑक्यूपाइड दे दें, E2 में 10 लाख दे दें और तीनों ही घर इसको दे दें जो कि वैकेंट है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना ना, E2 वाला केस या E1 वाले केस दोनों में दिमाग लगाने के लिए E2 में चलते हैं। E2 में क्या हो सकता था, 10 5 0, यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही मेरे जो है अवेलेबल रहेंगे वैकेंट के लिए, मतलब ये भी वैकेंट कह रहा हूँ, ये भी वैकेंट कह रहा हूँ, इफ वी गो बाय दिस केस, ठीक है, ये दोनों होगा, यानी कि D1 के अंदर जो ऑक्यूपाइड है ये होना चाहिए, F1 में जो ऑक्यूपाइड है ये होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है कहाँ से, पॉइंट नंबर 2 से, जहाँ पे ये बोला था कि रो1 में ब्लॉक वाई में कोई एक ही फ्लैट है जो कि ऑक्यूपाई होता है, यहाँ पे तो कोई लिखा हुआ है रो1 हैज 2 ऑक्यूपाइड एंड वन इन ईच ब्लॉक, यानी कि एक रो1 में एक फ्लैट ब्लॉक वाई वाई का होना चाहिए था और एक ब्लॉक एक्स का होना चाहिए था। तो बाय दिस लॉजिक मैंने क्या कंसिडर, मतलब मेरे को क्या पता चला, E2 वाला केस नहीं ले सकते, तो क्या लेना पड़ेगा, E1 वाला केस। E1 वाला केस लेने के लिए चलो थोड़ा यहाँ पे हम क्लीन कर लेते, बिकॉज हमने जो केस लिया था उसकी वजह से हमने ये हाईलाइट कर लिया था, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, E1 वाला, E1 हो जाएगा 12 लाख का घर, यानी कि 12 लाख का घर का मतलब दिस विल बिकम एक पार्किंग वाला घर, ठीक है, यानी कि बाकी जितने हैं वो कौन से हो जाएंगे, विदाउट पार्किंग वाले, ठीक। ये तो केस अपना गलत हो चुका है। अच्छा, अब अपने को क्या पता है, E1 एक ऐसा है जिसके अगल बगल में से कोई एक फ्लैट है जो कि सॉरी ऑक्यूपाइड है, अब वो कौन सा फ्लैट है नहीं पता, ठीक। 1 2 3 है, 3 में से एक ऑक्यूपाइड देना है, ये तो नहीं हो सकता, अब ये दोनों में से कौन सा हो सकता है, क्या वो F1 हो सकता है, क्या वो D1 हो सकता है, वी हैव टू थिंक फॉर दिस पार्ट। D1 हो सकता है क्या, D1 के लिए अगर सोचे, ठीक है, D1 का क्या बन सकता है, क्योंकि ये सब विदाउट पार्किंग वाले बन गए, ये सब विदाउट पार्किंग है, विदाउट पार्किंग, विदाउट पार्किंग, विदाउट पार्किंग, विदाउट पार्किंग, ये सब विदाउट पार्किंग वाले बन गए। तो यानी कि इसका क्या बन सकता है, 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस प्रॉब्ली
यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो ये 15 लाख के ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऐसे ही जरा F1 पे दिखाया जाए, मतलब ये जो ये है, दिस विल बिकम मोर देन 15 लाख, पॉसिबल दिख रहा है। F1 पे अगर देखा जाए तो F1 का क्या बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बेस प्राइस 10 लाख का लेंगे, जीरो ले लेंगे, कोई भी रोड एडजेसेंट नहीं है। और अगर ऑक्यूपाइड में देखें तो ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 0 और 3। अब क्या हो रहा है, F1 का जो प्राइस बन रहा है वो 10 लाख या 13 लाख बन रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता था, ब्लॉक वाई में जो सबसे सस्ता अवेलेबल फ्लैट है वो कौन सा है, वो है ये वाला, विच इज ऑफ 15 लाख, यानी कि 15 लाख से कम जा नहीं सकता। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि यार F1 तो ऐसा एक फ्लैट होगा जो कि ऑक्यूपाइड होगा और वो बिकने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज देयर मे बी अ सिचुएशन, बिकॉज जो कोटेशन है ना वो वैकेंट फ्लैट के अराउंड चल रही है, तो अपने को क्या पता चल रहा है, अगर ये वैकेंट होता तो उसका प्राइस मैक्सिमम 13 लाख बन सकता था, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो मिनिमम है वो 15 लाख है, और ये 15 लाख से कम बनना है। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि यार ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरा ऑक्यूपाइड फ्लैट, ठीक। अगर ये ऑक्यूपाइड है तो ये वैकेंट होगा, क्योंकि E1 के बगल में एक ही ऑक्यूपाइड हो सकता था। अच्छा, E1 के बगल में एक ऑक्यूपाई हो सकता था, तो ये होगा अपना वैकेंट, ठीक, ये मिल गया अपने को वैकेंट। अच्छा, कॉलम नंबर डी में एक ऑक्यूपाई होता है, अब वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली यही होना चाहिए, ठीक। कॉलम नंबर एफ में भी एक ऑक्यूपाई कम से कम होता है, एक तो F1 होगा, एक F2 होगा कि नहीं होगा नहीं पता। F2 के लिए भी प्राइस निकाल के देख लें क्या, अगर F2 का प्राइस निकालना होगा तो क्या निकलेगा, F2 का प्राइस निकलेगा 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस क्योंकि यहाँ पे तो एक है, ये 13, तो 18 लाख तो बन ही रहा है, तो यानी कि F2 के बारे में आई कैन नॉट डिटरमाइन, ये 18 का हो सकता है, या अगर वैकेंट है तो 18 का होगा, अगर नहीं होगा तो पता नहीं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हें गोइंग फर्दर तुम्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिसकी वजह से यू आर एबल टू फिगर आउट फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। फिलहाल के लिए F2 के लिए जो स्टेटस है दैट इज अनसर्टेन, मतलब पता नहीं है। और चलो इसी तरीके से ब्लॉक एक्स के लिए मेहनत करते ना। ब्लॉक एक्स पे क्या पता अपने को, ब्लॉक एक्स पे पता है कि यार ये जो चीज़ है इसमें एक मैक्सिमम फ्लैट के बारे में बात कर रहा है, विच इज ऑफ 24 लाख, ठीक है। अब 24 लाख वाला जो फ्लैट होगा वो कैसे बना होगा, वो बना होगा बेस प्राइस प्लस 5A प्लस 3B से, 5A 3B यहीं से आ रहा है ना, 5A और 3B यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अच्छा, बेस प्राइस क्या हो सकता था, 10 लाख प्लस 5A प्लस 3B, ठीक, या 24 लाख का 12 लाख प्लस 5A प्लस 3B, ऐसा हो सकता था, ठीक। इस वाले केस में 5A प्लस 3B कितना हो जाएगा, 12 लाख, यानी कि A और B की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ सकती है, A की 0 ले सकते हैं, B की 4 लेनी पड़ेगी। क्या B की 4 ले सकता हूँ, कोई एक ऐसा घर है जिसके अराउंड 4 नेबर बन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं, यानी कि ये वैल्यू तो मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, A की वैल्यू को 1 लेंगे तो B की वैल्यू को इंटीजर नहीं मिलेगी, A की वैल्यू को 2 लेंगे तो B की वैल्यू को इंटीजर नहीं मिलेगी, A की वैल्यू 3 ले नहीं सकते, यानी कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो इसमें क्या होना चाहिए, 5A प्लस 3B इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 14 लाख रुपए, यानी कि A और B की जो वैल्यू है वो क्या बन सकती है, A की वैल्यू को 0 लूंगा तो बन नहीं सकता, A की वैल्यू को 1 लूंगा तो B की वैल्यू को 3 बन सकता है, A की वैल्यू को 2 लूंगा तो B बन नहीं सकता, A की वैल्यू 3 ले नहीं सकता, यानी कि एक जो केस बना वो क्या बना, A की वैल्यू को 1 और B की वैल्यू को 3, यानी कि आपको ये जो मैक्सिमम वाला फ्लैट है वो एक ऐसा फ्लैट है जिसके अराउंड एक रोड होगी और 3 ऐसे फ्लैट होंगे जो कि ऑक्यूपाइड होंगे। और ये कौन सा फ्लैट हो सकता है, अगर आप सोचो आपके पास एक सीधा सीधा आंसर दिखाई देगा विच इज B2, और कोई भी आपको फ्लैट नहीं मिल सकता। क्यों, आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए C1 C2, ये 3 है जिनके अराउंड एक रोड है, C1 B2 और A2, क्योंकि C2 ऐसा जिसके अराउंड 2 रोड है, ठीक है। C1 के साथ प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम जो इसकी एडजेसेंट हो सकता था वो 2 हो सकता था, A2 के साथ भी यही प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है, B2 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंट फ्लैट है 24 लाख वाला वो कौन सा है, वो है B2, ये है, जो कि आपका 12 लाख सॉरी 10 लाख, यानी कि ये पार्किंग वाला नहीं है, विदाउट पार्किंग वाला है, विदाउट पार्किंग वाला फ्लैट है जिसके अंदर 12 लाख, और अगल बगल तीनों इनके ऐसे हैं जो कि ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड है तो फिर उनको वैसे हाईलाइट कर लेता हूँ मैं कि ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है,
ये भी भाई साहब ऑक्यूपाइड है और ये भी ऑक्यूपाइड है। अच्छा, अपने को पॉइंट नंबर 2 में ये भी लिखा हुआ था कि ब्लॉक नंबर XX में जो रो 1 है वहाँ पे एक ही फ्लैट है जो ऑक्यूपाई होता है, तो वो फ्लैट अपने को ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि ये दो ऐसे होंगे जो कि वैकेंट होंगे, ये भी वैकेंट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने जो 12 घर है 12 में से 11 घर को आइडेंटिफाई कर लिया। हमें एक घर है जिसके बारे में नहीं पता, वो घर कौन सा है, F2 है। F2 के बारे में आई एम नॉट श्योर क्या होना चाहिए। ठीक है, F1 के बारे में भी निकाल लिया, तो हमने सबका निकाल दिया। F2 के बारे में लेट्स सी कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा हुआ है क्या जिसके लिए अपने को F2 पे मेहनत करनी होगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ मेनी हाउसेज आर वैकेंट इन ब्लॉक एक्स। ब्लॉक एक्स में कितने हाउस वैकेंट है, 1 2 3, यानी कि पहले का आंसर होना चाहिए 3 घर हैं जो कि वैकेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज आर डेफिनेटली ऑक्यूपाइड। डेफिनेटली ऑक्यूपाइड का मतलब A1 ये तो वैकेंट है, खत्म। D2 ऑक्यूपाइड, डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है। B1 डेफिनेटली ऑक्यूपाइड है। F2 आई एम नॉट श्योर ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, क्योंकि वर्ड डेफिनेटली यूज किया, तो ये भी हम मार्क नहीं करेंगे। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करा गया था और कैट ने सबको रिवॉर्ड भी करा था, इसीलिए ध्यान करो, तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। यहाँ पे क्या हुआ था, गलती से इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए थे। ठीक है, एक ही होना चाहिए था, तो ये चीज़ को चैलेंज में फेंका गया था और मतलब चैलेंज किया गया था, और कैट ने सबको रिवॉर्ड करा था 3 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वैकेंट हाउसेज इन रो 2। रो 2 में सबसे जो बेस्ट हम कर सकते हैं फॉर द वैकेंट हाउसेज, 1 है, 2 है, तीसरे के बारे में नहीं पता भैया है कि नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ईदर 2 और 3, बिकॉज F2 इज समथिंग जो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो वैकेंट है या ऑक्यूपाइड है। What is the maximum possible quoted price of vacant house in column E? कॉलम E में जो maximum possible quoted house क्या होगा, E2 है। ठीक है, क्योंकि E1 का तो सबसे कम रहा है ये पता है, तो E1 तो नहीं होना चाहिए कॉलम E में, 15 तो सबसे कम है ना, और मैक्सिमम पूछा तो वो E2 का ही होना चाहिए। E2 में क्या पता है बेस प्राइस क्या होगा, 10 लाख रुपए, क्योंकि भैया बिना पार्किंग वाला घर है। एक रोड जा रही है तो 5 लाख रुपए। अब इनके अराउंड ऑक्यूपाइड कौन सा है, ये नहीं है, D2 है, प्रॉब्ली F2 भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड यूज किया हुआ है, तो यानी कि F2 भी हो सकता है, बिकॉज F2 का आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं है। ठीक है, तो इधर और का केस है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि होगा ही होगा, यानी कि ये 6 बन जाएगा, यानी कि ये कितना बनना चाहिए, 21 लाख, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 21 लाख रुपए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हुए, द फॉलोइंग इन ब्लॉक YY हैज पार्किंग स्पेस। ये तो E1 है, यहाँ पे हमने ये तो आसानी से निकाल रखा था। ठीक है, सो आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच वाला सेट, मतलब स्लॉट 1 में सबसे पहला मीन मीडियन मोड वाला करना चाहिए था, उसके बाद वो वोटिंग वाला करना चाहिए था। अगर समय बचता तो ये करता और स्केड्यूलिंग सबसे लास्ट में करता, बिकॉज 40 मिनट का ही पेपर है ना यार, मैं 40 मिनट के बियॉन्ड तो नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक ऐसा सेट है जो कि 12-13 मिनट से ज़्यादा लेके गया होगा, मतलब 15 मिनट के आसपास ही लेके जाएगा, बिकॉज इसके अंदर ना एक्चुअल में जो बच्चों ने फीडबैक दिया था उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने ये सॉल्व करा। ठीक है, एंड दे फिगर्ड आउट एंटायर वैल्यूज, और वो काफ़ी अच्छे से करा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करा, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे उनको 2 मिला ना, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए, एंड देन दे रियलाइज कि यार ये कहीं गलत तो नहीं सॉल्व हो रहा है, और फिर वहाँ पे लोगों ने छोड़ दिया ये सेट को। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ था कैट 23 शॉर्ट 1 वाले लोगों के साथ। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।